Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video lecture, we will discuss about plant cell wall formation and plant cell wall function. First step is this cell wall formation. Plant cell wall formation basically occur in two steps. Step 1 is the formation of matrix and the step 2 is the synthesis and orientation of cellulose microfibrils. For the first step, the formation of matrix start in the Golgi apparatus. Golgi apparatus is involved in the formation of vesicles which are transported from outside the cell through plasma membrane with the process of exocytosis. And the second step is the synthesis and orientation of cellulose microfibrils. Cellulose is the main component of plant cell wall, which is actually a polymer or polysaccharide of beta D glucose subunit, which is a sugar molecule, and the cellulose chains are synthesized by an enzyme complex which is situated outside the cell in the cell membrane, and this enzyme complex is called cellulose synthetase. Plant cell wall has different layers. The first formed layer is called primary wall and it grows from outside, and the innermost layer is secondary wall, and then middle lamella and tertiary wall. The first formed wall is the primary wall and it grows from inward to outward. It means the oldest layer is the outermost layer and the newest layer or youngest layer is the innermost layer. So let's start our primary cell wall. In primary cell wall, cellulose microfibrils are randomly arranged. There is no arrangement of microfibrils in a proper orientation, either horizontally or vertically in a same manner. They are randomly arranged, and it is thinner than the secondary wall because it is first formed. Found in the parenchyma cell in the mesophyll of the leaf storage parenchyma of root and the tubers. The primary wall may be thick in parenchyma. Stems में ये thick हो सकती है, लेकिन parenchyma cells of tissues में parenchyma tissues में root के ये thin होती हैं. Thickening occur due to addition of cellulose and non-cellular component and water. सेल वॉल के अंदर अगर सेलुलोज के अलावा मटेरियल के एडिशन हो तो जाहिर सी बात है इसने थिकनिंग शो करनी है. दे रेयरली हैव लिग्निन, दे डोंट हैव लिग्निन इन देयर कंपोजिशन which is a characteristic of secondary wall. Secondary wall, it is commonly made of three layers: S1, S2 and S3. S1 and S2 are the thickest. S means secondary, 1 is the first forming, S2 is secondary second layer and S3 is secondary third layer. There are different orientations of microfibrils in three layers. सेकेंडरी वॉल्स की जितनी मर्जी लेयर्स हो जाएं जो कि प्राइमरी वॉल के बाद बनेंगी, इसकी अरेंजमेंट हर लेयर के अंदर सेलुलोज की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट ही हमें इनेबल करती है कि हम पहली, दूसरी और तीसरी लेयर के अंदर फ़र्क मालूम कर सकें. प्रेजेंस ऑफ लिग्निन मेक इट रेजिस्टेंस टू डिके एंड एनिमल अटैक बाय हर्बीवोर्स. लिग्निन की प्रेजेंस प्राइमरी वॉल में नहीं है, सेकेंडरी में है. यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल एक तो कंपोजिशन से भी डिफरेंट है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट में भी डिफरेंट है. यहाँ आगे आपके सामने पिक में दिखाया हुआ है सेकेंडरी वॉल. सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर है वो थर्ड लेयर है, S3 है, क्योंकि वो सबसे आखिर में बनी है. और जो सबसे पहले बनी हुई है वो है प्राइमरी वॉल. उसके बाद प्राइमरी के बाद बनेगा सेकेंडरी लेयर फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड एंड सेकेंडरी थर्ड. अब आप ये देखें कि जो प्राइमरी वॉल है इसके अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड है. लेकिन अगर हम S1 पे जाएं, उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है. S2 में भी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, लेकिन वो ओरिएंटेशन पहली से डिफरेंट है. S3 के अंदर भी डिफरेंट अरेंजमेंट है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, और इसके अंदर सबसे एंड में ल्यूमेन दिखाया हुआ है और ये ट्रांसफर सेक्शन है ऑफ अ ट्राइकाइड. इसके बाद मिडल लैमेला एंड द टर्शरी सेल वॉल. मिडल लैमेला इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल. एक सेल की सेल वॉल
और दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो लेयर है उस लेयर को हम मिडल लैमेला कहते हैं। इंटरसेक्टिंग मटेरियल कह सकते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब है जॉइनिंग मटेरियल। इट इज़ कम्पोज्ड, इसके कंपोजिशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी से डिफरेंट है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पेक्टिन बट समटाइम लिग्निफाइड इन ओल्डर सेल। लिग्निन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, पॉलीमर है जो कि रिजिडिटी देता है सेल वॉल को। इसके बाद टर्शरी वॉल जो है वो हर सेल में नहीं होती, बहुत कम सेल्स में होती है। बीनीथ द सेकेंडरी वॉल के नीचे टर्शरी वॉल होती है। इट डिफर फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी, केमिस्ट्री एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़। सेलुलोज द टर्शरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड जाइलिन, यानी कि टर्शरी सेल वॉल का प्रिकर्सर जो है वो जाइलिन है। इसके बाद आगे आ जाएं पिट्स पे। पिट्स क्या होते हैं? पिट्स आर द डिप्रेशन इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। अगर थोड़ा सा तनाव या झुकाव आ जाए सेकेंडरी और प्राइमरी वॉल के अंदर तो वो पिट्स कहलाते हैं। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं। पिट्स रिजल्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल ड्यू टू डिफरेंशियल डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। प्राइमरी सेल वॉल हमें पता है सेलुलोज से बनी हुई, इसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी प्लांट के अंदर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे लिग्निन, पेक्टिन जो है वो आने लग जाएंगे, वो सेल वॉल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब आएंगी प्लांट सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर रहेंगी, तो इनकी डिपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे ये ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाएंगे, कहीं पे ये ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं पे ये इवनली सेपरेट नहीं होंगे। तो इस वजह से सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो डिप्रेशन आ जाएगा, किसी साइड से वो ज़रा मोटी सी होगी, किसी साइड से ज़रा पतली सी होगी, तो ये पिट्स कहलाएंगी। इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा होता है। अब जो पिट्स हैं वो हैं एक तरह से हम कह दें कि होल है प्लांट की सेल वॉल के अंदर। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा वो है कि अगर प्लांट की सेल वॉल के अंदर होल हो और वो सेल मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू हो और वो सेल सिग्नलिंग के तौर पे काम आए, तो इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यानी कि ऐसा गैप बिटवीन द सेल वॉल लेयर्स विच आर कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि होल इन प्राइमरी मिडल लैमेला आर लिंक विद सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। एंड दे प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन द सेल्स। दीज आर फॉर्म व्हेन द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स इनटू सेल प्लेट लीविंग द गैप्स। जो गैप्स लीव होंगे जब वेसिकल फ्यूज होंगे सेल प्लेट के अंदर, जो माइटोसिस का सेकंड स्टेप है, तो प्लांट के अंदर ये प्लाज्मोडेस्माटा बन जाएंगे जो कि प्लांट की सिग्नलिंग, जैसे कि प्लांट की सेल के अंदर हार्मोन ने आना है या कि और रिसेप्टर मॉलिक्यूल ने अटैच होना है या कोई स्ट्रेस सिग्नल आना है, तो वो इसकी ट्रांसमिशन सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। गोल्जी वेसिकल्स एट पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। प्लांट सेल वॉल के अंदर जो गोल्जी apparatus, it is involved in cell secretion and cell wall formation. Vesicles formed by the Golgi apparatus are containing the lignin molecule, pectin molecule, which are diffused outside the cell through exocytosis and add into the cell wall. इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल फंक्शन क्या रोल करती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। आप देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनकी शेप में काफ़ी फ़र्क है कि प्लांट सेल हैज़ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, नॉट चेंजिंग स्ट्रक्चर. It is due to the presence of cell wall and it provide mechanical support just like our skeleton. It is like a skeleton around each cell determine the shape and the size of cell. हमें पता है कि अगर सेल प्लांट सेल को ये स्पेसिफिक शेप देते हैं कि अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन हो गई है तो सेल वॉल ब्रस्ट हो जाएगी और सेल को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करने देता, उसको एक तरह से बॉर्डर बना के रखा हुआ है कि प्लांट सेल को ब्रस्टिंग से बचाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल है।
inside the plant cell wall is the living component and receives signals such as hormones through plasmodesmata, transmission of the signal of course, and nourishment of carbohydrate, absorption and secretion from rhizoid. अब ये प्लांट सेल वॉल की जो पिक्चर है, इसमें आपको ये जो प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, इसमें आपको जो पर्पल कलर के बीड्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ऐसी डायग्राम है जो बता रही है कि प्लांट के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसकी सेल वॉल के, वो किस तरह अलाइन है। अब जो ये पर्पल बीड्स हैं, ये पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेंडमली अरेंज है, और जो ये ग्रे कलर की लाइंस हैं, ये हैं सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स जो कि अरेंज है। देखिए जो बॉटम पे लेयर है ग्रीन से ऊपर वाली, उसमें एक अरेंजमेंट है, दरमियान में डिफरेंट अरेंजमेंट है, उसके बाद सेलुलोज की डिफरेंट अरेंजमेंट है जब वो ऊपर आ रहे हैं। इनके दरमियान पेक्टिन जो है वो क्रॉस लिंक है, मतलब पेक्टिन एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल के साथ भी अरेंज है और दूसरे के साथ भी अरेंज है। और जो इसमें ग्रीन कलर की है ना, ये क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन चेन्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये भी सेल वॉल का कंपोनेंट है। अब ये प्राइमरी सेल वॉल दिखाई, सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीन कलर वाली, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्म हुई है तो न्यूली सेल में ये सबसे साथ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लेकिन अगर हम एक ओल्ड सेल देखें जो बहुत पुराना हो गया, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसकी सेकेंडरी वॉल एसोसिएट होगी, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो प्राइमरी सेल वॉल की होगी। इसके बाद मिडल लैमेला दिखाई हुई हमें, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर है। इफ़ यू एनी क्यूरियस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।